اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to this new session of yours today. It is about the exercise, the comprehension questions asked in the exercise of this lesson. We have just completed the textual reading of this lesson end of term, and now we will be going through the exercise of this lesson. Dear students, David Dashies was a very renowned, famous English writer, critic, novelist, short story writer, essayist, and this end of term essay has been written by this famous, renowned English writer. This is an autobiographical essay. Autobiographical essay بیٹے ایسے مضمون کو کہتے ہیں جس میں مصنف جو ہے، لکھنے والا جو ہے، تحریر کنندہ جو ہے، رائٹر جو ہے، وہ اپنی خود نوشت سوانح حیات جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی کی کہانی کو خود سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. ریلیٹس دا اسٹوری آف ہز لائف ہمسیلف. دس از آٹوبیوگرافیکل. یہ مضامین بھی ہوتے ہیں، یہ کہانیاں بھی ہوتی ہیں، ناول بھی ہوتے ہیں، تو اس کی تحریر کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ان وچ دا آتھر ریکالز دا ڈیز آف ہز اسکول لائف. اپنے اسکول کے زمانے کو یاد کرتا ہے. ہی ایکسپریسز ہز فیلنگز اینڈ میموریز ریگارڈنگ دا ہالیڈیز وائل کریٹیسائزنگ دا ریگرس اینڈ بورنگ اسکول سسٹم. وہ اپنے جذبات و محسوسات اور وہ جو ماضی کی یادیں ہیں اسکول کے ہالیڈیز کے بارے میں، ان کو یاد کرتا ہے بڑے خوشگوار انداز میں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے بڑے دھیمے لہجے میں اسکول سسٹم کا جو بوریت والا اور انتہائی سخت قسم کا، مشکل، ہارڈ قسم کا، لیبوریس قسم کا، ریگرس جو کام ہے، اس کو، نظام کو بھی تھوڑی تنقید کا نشانہ بناتا ہے. ہی ریکالز دا ہالیڈیز ایز دا پیریڈ آف فیلسٹی، دیٹ از ہیپینیس اینڈ جوائے. یہ دور جو ہوتا ہے بچوں کے لیے، چھٹیوں کے دن جو ہوتے ہیں، وہ بڑا ایک ایسا دور ہوتا ہے، چھوٹا سا مختصر سا دورانیہ. دے فیل ویری ہیپی. چائلڈ لائک جوائے کے ساتھ اس نے ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہی فرینکلی ٹاکس اباؤٹ ہز پاورٹی in childhood and describes those desires that remained unfulfilled due to his poverty. بڑے ہی فرینک دلی کے، اس نے فراخ دلی کے ساتھ جو ہے اپنے بچپن میں اپنی جو ہے وہ غربت کا اظہار کیا ہے، اور وہ خواہشات، وہ تمنائیں جو اس کی بچپن میں سیراب نہ ہو سکیں، پوری نہ ہو سکیں، ان خواہشات کا جو ہے وہ ذکر بھی ساتھ ساتھ کیا ہے، جن میں سے خاص طور پر جیسے بچے ٹافیز کے شوقین ہوتے ہیں، آئس کریم کے شوقین ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنی یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات جو ہیں ان کو پورا کر سکے. دا رائٹر پوزیسز ریمارکیبل میموری. اس کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی یادداشت بڑی زبردست ہے. ظاہر اس نے مضمون یہ بڑی عمر میں آگے لکھا ہے. اینڈ ٹیلز ایون دا مائنیوٹ ڈیٹیلز آف بائی گون ڈیز. گزشتہ دن جو ہیں، ماضی جو ہے اس کا، ان کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات اس نے بڑی خوبصورتی سے جو ہیں پروئی ہیں. تو بیٹے یہ مضمون جو ہے یہ ایک تعلیمی مضمون ہے، تعلیمی موضوع پر ایک مضمون ہے، جس کے اندر مصنف جو ہے اپنی ذاتی زندگی کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں نظام تعلیم، اسکول کے سسٹم اور اس کے دورانیہ کیسے پڑھائی کیسے ہوتی ہے، اور بچے جو ہے وہ اس پڑھائی کی طرف اور اس اسکول سسٹم کی طرف بچوں کی کیا سوچ ہوتی ہے، اور بچے جو ہے وہ چھٹیوں کو کیسے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی جو دیرینہ اور خواہشات ہوتی ہیں وہ کیسے جو ہے وہ بچے ان کو پرسو کرتے ہیں. یہ سارے موضوعات کو اس نے بڑی خوبصورتی سے اپنے ذاتی حوالے سے ود دا ایگزامپل آف ہز اون لائف اس نے جو وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. Question number 1 of the exercise. Who is the writer of this essay? This essay has been written by David Dashies. بیٹے اس کو ڈیشیز بولنا ہے، ٹھیک ہے، پروناؤنس کرتے ہوئے ڈیچیز نہیں کہنا ہے.
डैशीज। तो ये मजमून जो है वो डेविड डैशीज ने लिखा है। What was डैशीज एटीट्यूड टूवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय? जब वो स्कूल में एक तालिब इल्म था तो उसका वीकेंड की तरफ रवैया, ये सवाल को पहले बाइफरकेट करते हैं बेटे, समझते हैं। अब इसमें चूँकि देखें 3-4 किस्म की छुट्टियों का जिक्र है, तो लिहाजा हमें सिर्फ स्पेशली इस सवाल में वीकेंड की जो छुट्टियां हैं, तातीलात हैं, उनकी तरफ उसके रवैये का जिक्र करना है। वाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट? तो वो वीकेंड का क्यों इतना इंतज़ार करता था, इतना क्यों उसे शौक़ था, ख्वाहिश थी? द राइटर लॉन्ग्ड फॉर द वीकेंड। मुसन्निफ जो था, अब डेविड डैशीज यहाँ नाम यूज़ करें ज़्यादा अच्छा है, द राइटर की बजाय डेविड डैशीज लॉन्ग्ड फॉर द वीकेंड एंड हॉलीडेज बिकॉज ही वॉज फेड अप विद द मोनोटोनस एंड लेबोरियस डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल वर्क। वो उकता चुका होता था इस यकसा किस्म के मोनोटोनस, यकसानियत से भरपूर एक जैसा, एंड लेबोरियस और इंतहाई सख्त किस्म की ये जो डेली रूटीन थी। ग्राइंड यहाँ रूटीन के मानी में आया, ये रोज़मर्रा की जो रूटीन थी स्कूल के काम की, इंतहाई सख्त किस्म की और यकसा किस्म की, बोरियत वाली, मोनोटोनस, उससे वो उकता चुका था, उसका जी भर गया था। ही ऑलवेज इंजॉयड हिज एक्चुअल स्कूल वर्क। देखिए यहाँ अब थोड़ा सा इजाफा करने की ज़रूरत है, हल्का फुल्का सा बेहतर किया जा सकता है इस जुमले को, अगरचे मानी तो देगा ये, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और कंबाइन कर लें, देखें ये होता है आप कैसे बेहतरी बैसी तालिब इल्म आप ख़ुद अपने मटेरियल को कैसे रिफ़ाइन करते हैं, बेहतर करते हैं। देखें यहाँ अगर आप ही वॉज़ नॉट a bad student at all and often enjoyed his actual school work, इस तरह से अगर कन्वे करें तो ये और खूबसूरत लगने लगेगा ये जुमला। तो however he needed some rest and refreshment being overburdened, बोझल हो जाने की वजह से वो कुछ आराम चाहता था। so he always longed for holidays as a school boy। अब अगर ये हम आखिरी जुमला ना भी लिखें तो भी हमारा जवाब जो है वो मुकम्मल हो जाएगा पिछले जुमले की हद तक। क्वेश्चन नंबर 3, विच बुक डिड अ स्कूल टीचर राइट एंड वाई? इस सबक में किस किताब का जिक्र है कि एक मुसन्निफ ने एक किताब लिखी स्कूल टीचर ने, और क्यों लिखी? वाई डज द राइटर रिमेंबर दिस बुक? मुसन्निफ को वो किताब जो है वो बार बार क्यों याद आती है? द राइटर रिमेंबर्स द बुक इंटाइटल्ड फ्राइडे थैंक गॉड रिटन बाय ए स्कूल टीचर। किताब का नाम हमें सही लिखना है, दुरुस्त लिखना है और कैपिटल में लिखना है, इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास के साथ। मुसन्निफ को वो किताब जिसका उन्वान फ्राइडे थैंक गॉड था, एक स्कूल टीचर ने लिखी थी, वो याद आती है, बार बार उसको रिकॉल करता है। द बुक रियली एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एक्सपीरियंस्ड बाय द राइटर एट द अराइवल ऑफ द वीकेंड। तो ये किताब जो है वो दरअसल उसके उस महसूसात, खुशी के एहसासात का इजहार करती हुई दिखाई देती है। एक्सपोनेंट है जो कि वो खुद जिनका वो तजर्बा करता था, जिनमें से गुज़रता था वो महसूसात में से, जब उसे हफ्ते के इख्तिताम की छुट्टियां जो थीं वो मुयस्सर आती थी, मिलती थीं। ये जवाब बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है, टू दी पॉइंट है, ऐसे ही लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ? स्कूल लाइफ के बारे में उसका अमूमी नुक्ता नज़र क्या था, जनरल किस्म का? हाउ डज द राइटर विजुअलाइज द स्कूल लाइफ? वो स्कूल की ज़िंदगी को कैसे देखता था, उस पर नज़र दौड़ाता था। विजुअलाइज तसव्वुराती तौर पर कैसे देखता था, ख्याली तौर पर कैसे देखता था। हाउ डिड द राइटर फील अबाउट द डेली रूटीन ऑफ स्कूल वर्क? बेटे बात वही है, एक ही है कि उसका जो डेली रूटीन वर्क है, आपको पिछले सवाल के जवाब में से मदद मिलेगी। वो मोनोटोनस वाला लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं, डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल वर्क वाला लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। तो देखें ये जवाब बात जो होते हैं एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। हमें एक बार वोकेबलरी जो है जब ज़हन नशीन हो जाए पिछले सवाल की, तो वो अगले सवालों के जवाबों में बहुत मददगार साबित होती है। अकॉर्डिंग टू द राइटर द स्कूल लाइफ प्रेजेंट्स ए वेरी ग्लूमी एंड टायरसम पिक्चर। वो मुसन्निफ के बकौल ये जो स्कूल की ज़िंदगी है बेहद
अफसरदा कर देने वाली और थका देने वाली एक तस्वीर कशी उसमें हमें दिखाई देती है। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल वर्क फेल हैवीली अपॉन द राइटर। ये जो रोज़मर्रा की रूटीन थी स्कूल के काम की, ये बुरी तरह उसके असाब पर सवार हो जाती थी। बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंट होमवर्क, इसके बेहद ज़्यादा होमवर्क की वजह से, हार्ड कंपटीशन, सख्त मुकाबले के जो एहसास होता था, एंड ए सेंस ऑफ नेवर बीइंग रिलैक्स्ड। असल एक बच्चा जो स्कूल गोइंग बॉय ये सोचता है कि उसे आराम करने का तो बिल्कुल चैन से बैठने का जो है वो कहीं मौका ही नहीं मिलेगा। ही डिसलाइक्ड हिज स्कूल लाइफ बिकॉज इट वाज मोनोटोनस एंड टायरसम। ये क्योंकि ये यकसानियत वाली थी और थका देने वाली ज़िंदगी थी। अदरवाइज ही वॉज नॉट ए बैड स्टूडेंट एट ऑल, ही वॉज ए गुड स्टूडेंट, रादर एक्चुअली इंजॉयड हिज स्कूल वर्क। तो अपने क्लासरूम वर्क से वो इंजॉय भी करता था, उसको रेलिश करता था, लेकिन ओवरऑल जो ये जो टायरसम माहौल था स्कूल का, रूटीन वर्क जो था, इससे वो घबराया घबराया सा रहता था, डरा डरा सा रहता था। ये उसके असाब पर ये गोया एक खौफ की तरह से, एक डर की तरह से, एक एहसास है ना, तो वो एहसास जो है वो उसे कि मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा आराम करने का, एक मुसलसल काम काम काम, तो ये वाला एहसास जो है वो उस बच्चे के ज़हन पर एक साइको बर्डन की तरह से सवार है। क्वेश्चन नंबर 5, हु मेड द राइटर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो कौन था जो मुसन्निफ को सुबह सवेरे उठने पर मजबूर करता था। हाउ डिड ही फील एट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सवेरे उठने पर उसके क्या महसूसात होते थे। व्हाट डिड द राइटर फील व्हेन ही हर्ड द वॉइस ऑफ द मेड सर्वेंट। जब वो नौकरानी की आवाज़ सुनता था सुबह सवेरे तो उसके एहसासात क्या होते थे। आंसर इसका जी, व्हेन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस वेंट अपस्टेयर्स टू वेक अप द चिल्ड्रन फॉर स्कूल, द राइटर फेल्ट वेरी अपसेट टू हियर हर वॉइस। बेहद परेशान हो जाता था उसकी आवाज़ सुन के। इट वॉज जस्ट लाइक ए समन्स फ्रॉम डैमिनेशन। ये ऐसे लगता था जैसे जहन्नम से उसको बुलावा आ गया है कि इट वॉज ए वेरी डिसमैल एक्सपीरियंस फॉर हिम। बड़ा ही दुखी कर देने वाला एक तजुर्बा होता था उसके लिए। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, रोज़ाना सुबह सवेरे उठना, एंड टू प्रिपेयर फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयारी करना। तो बादिल नखास्ता जिसे आप उर्दू में कहते हैं, बादिल नखास्ता, वो बेचारा इस रूटीन में से गुज़रता था। तो उस नौकरानी की आवाज़ उसे बड़ी वो डेवलिश किस्म की लगती थी। डेवलिश, जस्ट लाइक अ समन्स फ्रॉम डैमिनेशन फ्रॉम हेल। तो बेटे ये उसके इब्तदाई महसूसात है। ये जवाब भी बहुत अच्छा बना हुआ है, वेल निट है, आपस में जुमलों का रब्त है और मफहूम सही तरह से ये जवाब अदा कर रहा है। इट कैन बी रिलाइड ऑन। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज द राइटर हैप्पी एट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जब वो आया तो उसे भाई वो खुश क्यों था यूनिवर्सिटी में। व्हेन डिड द राइटर सेंसेशन ऑफ स्कूल वर्क डिसअपीयर। वो जो उसके महसूसात थे स्कूल वर्क के वो कब गायब हुए, ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में आके। व्हाट डिफरेंस डिड ही एक्सपीरियंस बिटवीन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। ये सवाल है कि मुसन्निफ ने जब वो कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में और स्कूल लाइफ में क्या फ़र्क महसूस किया। द राइटर फेल्ट ए कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन अ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। मुसन्निफ ने एक बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल फ़र्क महसूस किया स्कूल लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में। इन स्कूल ही हैड टू कीप हिमसेल्फ बिजी ऑल द डे। उसे स्कूल में सारा दिन अपने आप को बिजी रखना पड़ता था, पढ़ाई पढ़ाई, काम काम। वेयर एज एट अ यूनिवर्सिटी, जबकि एक यूनिवर्सिटी में आकर ही हैड टू अटेंड अ फ्यू पीरियड्स, चंद एक क्लासें पढ़ना होती थी। ही गॉट रिड ऑफ अनहैप्पी सेंसेशन ऑफ स्कूल वर्क। जब ये जो नाखुशगवार एहसास था स्कूल के काम का, उससे उसे निजात मिली। वैन ही एंटर्ड अ यूनिवर्सिटी, जब वो एक यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। देयर ही हैड टू अटेंड लेसर नंबर ऑफ क्लासेस, एक तो क्लासें कम पढ़ना होती थी दैन स्कूल, स्कूल के मुकाबले में। एंड ही इंजॉयड द फ्रीडम ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड। तो एक नई तालीमी दुनिया की जो आज़ादी है आने जाने की, जैसे उसने वहाँ वो फ्रेज़ यूज़ की है, फ्रीडम टू कम एंड गो, वो उसको उसने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन यहाँ ये अच्छे अंदाज में कन्वे हो गया है, इस नई तालीमी दुनिया की जो फ्रीडम है उसको वो इन्जॉय करता था। तो बेटे दोनों को कंपेयर करना है, बस एक ही दो पॉइंट हैं बस, वो कि यहाँ काम कम है, लेसर नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं, दूसरे यहाँ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, बर्डन कोई नहीं है, खौफ कोई नहीं है। तो बस दो ही पॉइंट हैं, बाकी और भी कंपैरेटिव
बहुत से जनरल पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 2 ही पर उसने ज़ोर दिया है, तो हम 2 ही को डिस्कस करेंगे। अपनी तरफ से बेटे जवाब में एक्स्ट्रा मालूमात जिसे आप कहते हैं, अपना इल्म बघारने की कोशिश नहीं करेंगे। बस जितना पूछा गया है ना, इसे कहते हैं रेलेवेंट जवाब देना। जितना पूछा गया है उतना ही जवाब देंगे। अपना इल्मियत जो है ना वो उसका इजहार नहीं करेंगे, वरना ख़राबियाँ पैदा होंगी, टेंस ख़राब होंगे, जुमले गलत होंगे, वर्ब ख़राब होंगे। तो 2 नंबर हैं एक जवाब के, तो बेटे वो ज़ाया हो जाएंगे। हमें ग्रामेटिकली दुरुस्त लिखना है, मुकम्मल जवाब लिखना है और टू दी पॉइंट लिखना है, रेलिवेंट आंसर देना है। जितनी बात पूछी गई है उसके हदूद के अंदर अंदर रहना है। और ये सवाल इसकी बहुत अच्छी मिसाल है कि हमने सबक में से सिर्फ उसने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं इनके कंपैरेटिव स्टेटमेंट के, तो हमने 2 ही पॉइंट जो है ना वो आगे एलेबोरेट करने हैं, नॉट मोर और लेस। हालांकि ज़हन में हमारे बड़े सारे और भी आते हैं, कितने सारे लातादाद, जब हम सोचते हैं कि स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में कितना फ़र्क है, तो बहुत कुछ है। लेकिन हम बिल्कुल उनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो मुसन्निफ़ ने कहा है उस तक अपने आप को महदूद करेंगे। तो बेटे ये जवाब देने के साथ साथ भाई मैं जानबूझकर आपको थोड़ा बताता रहता हूँ कि आपका ज़हन जो है वो क्लियर होता जाए, आगे जो है मज़ीद सवालात आप खुद बनाने के आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काबिल हो जाएं, लिख लिख कर। ये प्रैक्टिस है ना, जैसे जैसे आप बेटे लिखोगे इन जवाबात को, आपको ज़्यादा गहराई में आपको इन जवाबात को खुद बनाने का हौसला पैदा होगा। आपकी वो अंदर वो जो हेजिटेशन है, हिचकिचाहट अंग्रेज़ी लिखने की, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होगी। लेकिन बेटे इनको खुद अपनी पेंसिल से ज़रूर लिखा करें ताकि आपकी राइटिंग पावर जो है वो डेवलप हो। क्वेश्चन नंबर 7, ही लाइक्ड हॉलीडेज़ फॉर देयर फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? देखें ये सवाल करने का अंदाज़, स्टेटमेंट पहले दी गई है, वो उसे ये छुट्टियां पसंद थीं, तातीलात पसंद थीं। क्यों? इनकी आज़ादी की वजह से। किस किस्म की आज़ादी भी, किस चीज़ से आज़ादी? तो बेटे ये पुराना एक सवाल है, शुरू में जो आया था दूसरा, ये दरअसल उसकी एक बदली हुई शक्ल है। ऑलमोस्ट द सेम इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द आंसर हियर। तकरीबन वही है, हमने सिर्फ मोल्ड करना है उसको। आंसर इसका, द राइटर लाइक्ड हॉलीडेज़ फॉर देयर फ्रीडम। मुसन्निफ़ जो है छुट्टियों को पसंद करता था इनकी आज़ादी की वजह से। फ्रॉम द ओवरलोडेड रूटीन वर्क ऑफ स्कूल। बेहद हद से बढ़ी हुई जो रूटीन वर्क था, ओवरलोडेड या ओवरबर्डनड, दोनों अल्फाज में से कोई आप यूज़ कर सकते हैं। ओवरबर्डनड, ओवरलोडेड भी ठीक है। मोनोटोनस का लफ्ज़ बड़ा अच्छा है, बल्कि 3-4 लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पिछले याद हो गए हैं तो बेटे वो सारे जितने एडजेक्टिव हैं आप यहाँ वो इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द मोनोटोनस, कामा, ओवरबर्डनड, कामा, इस तरह से। और कोई आपके ज़हन में कोई आ रहा हो कोई अच्छा एडजेक्टिव तो वो भी डाला जा सकता है। कोई एडवर्ब कोई आ रहा हो तो रूटीन वर्क के बोझलपन को ज़ाहिर करने के लिए। ही एन्जॉयड हिज एक्चुअल स्कूल वर्क, ये अच्छा जुमला है। बट ही डिस्पाइज्ड द हैवी बर्डन ऑफ डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल। देखें लफ्ज़ बदला गया है, पीछे बेटे हमने हेटेड का लफ्ज़ यूज़ किया, डिस्पाइज्ड उसी मानी में नफ़रत करता था, वो डिसलाइक करता था इस भारी भरकम बोझ को जो डेली रूटीन वर्क था। ही वॉज एक्साइटेड टू गेट सम हेल्दी रिस्पाइट ड्यूरिंग दिस रूटीन। अगर उसे कोई ब्रेक मिल जाती थी, रिस्पाइट, कोई छुट्टी मिल जाती थी, तो वो उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती थी और बड़ी खुशी यानी महसूस करता था वो। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़। गर्मियों की अपनी तातीलात वो कैसे बसर करता था, कैसे गुजारता था। द राइटर लॉन्ग्ड फॉर समर हॉलीडेज़ इम्पेशेंटली द होल ईयर। देखें बेटे ये सवाल में बेहतरी लाने के, सॉरी जवाब में बेहतरी लाने के तरीके। अगर हम यूँ कह दें द राइटर लॉन्ग्ड फॉर समर हॉलीडेज़ द होल ईयर तो दैट्स ओके, लेकिन भाई इसमें ज़रा ज़ोर पैदा करने के लिए इम्पेशेंटली, देखें समझ रहे हैं ना। ये कुछ बच्चों को पता लग रहा है कि यहाँ हमने ये एडवर्ब जो है जानबूझकर इंसर्ट किया है कि बड़े इज़्तिराब के साथ, बड़ी बेचैनी के साथ सारा साल वो मुंतज़िर रहता था। ज़रा चूँकि ये सबक महसूसात का सबक है तो हमने एक ऐसे लफ्ज़ का इंतखाब किया जो उसके महसूसात को बयान कर सके, इम्पेशेंटली। हालांकि फैक्ट जो है वो उतना ही बहुत है। द राइटर लॉन्ग्ड फॉर समर हॉलीडेज़।
the whole year या all the year around. It was the time towards which the whole year moved. ये वो उसका फ्रेज़ है, उसको शॉर्ट करके यहाँ पेश कर दिया गया है कि ये ऐसा ज़माना, ऐसा वक्त होता था, पीरियड होता था जिसके गिर्द उसे लगता था कि सारा साल घूम रहा है इन छुट्टियों के गिर्द। यानी इट वॉज़ ए पीरियड ऑफ लॉन्ग रियल एंड परमानेंट इन्जॉयमेंट फॉर हिम। ये एक तवील, हकीकी और मुस्तकिल खुशी का ज़माना उसके लिए। ही ऑफ्टन वेंट ऑन अ ट्रिप विद हिज फैमिली टू एंजॉय हिज हॉलीडेज इन ए फ्री एटमॉस्फियर। देखे वो जो बात उसने पूछी थी ना, ऊपर पहले 3 फिक्रे बेटे 2 बैकग्राउंड कवर कर रहे हैं। बैकग्राउंड के समर हॉलीडेज़ पर वो महसूस क्या करता था, और जवाब जो है ना वो असल में सिर्फ एक जुमले में दिया गया है। आप समझ गए हैं आखिरी जुमले में कि वो अक्सर जो था वो अपने वालिदैन के साथ वो सैर सपाटे के लिए निकल जाता था, इन हॉलीडेज़ को इंजॉय करने के लिए किसी आज़ाद माहौल में, फितरत से करीब, इन द लैप ऑफ नेचर जिसे आप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द राइटर्स अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स। मुसन्नफ़ की वो जो नाखुफ्ता, जिन्हें वो ख्वाहिशात कहते हैं, दबी हुई ख्वाहिशात, तशना काम उर्दू का लफ्ज़ है इनके लिए, अनफुलफिल्ड के लिए, वो प्यासी रह जाने वाली ख्वाहिशात, नामुकम्मल ख्वाहिशात, वो क्या थी। और व्हाट डिड द राइटर लॉन्ग फॉर ऑल हिज चाइल्डहुड। अपने सारे बचपन में मुसन्नफ़ किस चीज़ की ख्वाहिश करता रहा एक बच्चे के तौर पर। और व्हाट डज द राइटर मीन बाई विशेज़ डू नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ। मुसन्नफ़ क्या कहना चाहता है भैया हमसे जब वो ये स्टेटमेंट देता है कि भाई इस ज़िंदगी में ख्वाहिशात एक ऐसी बला है जो कभी पूरी नहीं होती, तमन्नाएँ जो हैं वो हमेशा प्यासी रह जाती हैं। जवाब इसका बेटे, ऑल हिज अर्ली चाइल्डहुड ही लॉन्ग्ड फॉर अ ट्राईसिकल एंड देन अ बाईसिकल विच हिज पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड। सारे बचपन में बेचारा 3 पहियों वाली साइकिल और 2 पहियों वाली साइकिल की शदीद ख्वाहिश दिल में रखता था, लेकिन ख़रीद नहीं सकता था, वालिदैन अफोर्ड नहीं करते थे। ही बॉट हिज फर्स्ट बाईसिकल, उसने खुद खरीदी, देखें, बॉट हिज फर्स्ट बाईसिकल विद द प्राइज मनी ही गॉट एट यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 21। देखें, तीनों चारों मालूमात एक ही जुमले में हमें देनी है कि 21 बरस की उम्र में जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ और वहाँ यूनिवर्सिटी में उसे एक प्राइज़ मनी मिली, तो उस प्राइज़ मनी से उसने बाईसाइकिल ख़रीदी। देखिए 4-5 मालूमात हैं जिनको एक जुमले में कंडेंस कर दिया गया है, तो ये जुमला क्रीम है। देन ही लॉन्ग टू बाई सम स्वीट्स और आइस क्रीम बट ही कुड नॉट मटीरियलाइज हिज डिज़ायर्स। आइस क्रीम या कोई स्वीट्स वगैरह कोई मिठाई शिठाई या कोई टॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ लेना चाहता है, लेकिन नहीं भाई, उसके पास पैसे नहीं थे अपनी इस ख्वाहिश को अमली जामा मटीरियलाइज, अमली जामा पहनाने के लिए। हिज ओनली डिज़ायर दैट डिड कम ट्रू वाज द हॉलीडेज। ले, उसकी जो वाहद ख्वाहिश ज़िंदगी में पूरी हुई एक तालिब इल्म के तौर पर, वो थी ये तातीलात। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द राइटर डू विद हिज पॉकेट मनी। तो अपनी पॉकेट मनी के साथ वो क्या करता था, कहाँ फेंकता था इसे। द राइटर गॉट ओनली ए फ्यू पेंस अ वीक एज पॉकेट मनी। चंद सिक्के उसे मिलते थे। भाई हमारे पुराने वक्तों में ना बेटे, हमारे जैसे मुल्क में होता था आना दवानी, 1 पैसा 2 पैसे के सिक्के होते थे, ये इस तरह के छोटे पेंस वहाँ। तो ही डिड नॉट स्पेंड इट, तो इस पैसे को वो खर्च नहीं करता था, बट सेव्ड इट इन आ मनी बॉक्स लाइक एज ब्रदर एंड सिस्टर। अपने बहन भाइयों की तरह वो इसे एक मनी बॉक्स में सेव करता चला जाता था। देखो एग्जैक्ट जवाब बस इतना ही काफ़ी है, 2 सेंटेंसेस में अगरचे बढ़ाया जा सकता है इसको। इट कैन बी एक्सपेंडेड, बहुत कुछ ऐसे ही काम गए, लेकिन दैट विल बी इररेलेवेंट अगेन। तो बेटे हमें टू दी पॉइंट बस अपनी बात को कन्वे करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द राइटर फील ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, वाई वॉज द फ्राइडे मॉर्निंग प्लेजेंट फॉर हिम। बेटे वो सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि भाई जुमा की सुबह वो उसके एहसासात क्या होते थे बहैसियत एक स्कूल गोइंग बॉय के। तो ये उसके लिए फ्राइडे मॉर्निंग क्यों इतनी खुशगवार उसे महसूस होती थी। फ्राइडे मॉर्निंग वाज ऑलवेज रोज़ कलर्ड, ये उसे गुलाब रंग दिखाई देती थी, बड़ी यानी खुशगवार। फॉर हिम बिकॉज इट वाज द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। बेटे यहाँ इजाफा कीजिएगा, द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। तो वो चूँकि काम का आखिरी दिन होता था हफ्ते का, लिहाजा उसे ये बहुत खुशगवार सुबह लगती थी।
देयर ले अहेड 2 full holidays, उससे आगे 2 भरपूर छुट्टियाँ. द फ्राइडे morning brought a new sense of joy with a sense of being able to relax for the weekend. ये एक नया एहसास होता था खुशी का, जिसमें ये एहसास पाया जाता था कि अब हफ्ते का इख्तिताम आ गया है तो उसे आराम करने का मौका जो है वो मिलेगा. बेटे जवाब ठीक है ये, ओके. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट डिड ही फील वाइल रिटर्निंग होम ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून? स्कूल से छुट्टी के बाद ये जुमा की दोपहर को वो क्या महसूस करता था? व्हाट वाज द मोस्ट प्लेजेंट नाइट ऑफ द वीक फॉर द राइटर? सबसे खुशगवार रात कौन सी होती थी हफ्ते की? ये वही सवाल का अंदाज़ है, ज़रा थोड़ा डिफरेंट है और लफ्ज़ चेंज कर दिए गए हैं. ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून द राइटर वॉकड होम लाइक एन एस्केप्ड प्रिजनर. देखें वो फ्रेज़ उसी की ली गई है. वो दोपहर को, जुमे की दोपहर को इस तरह से भागता हुआ, तेज़ी से चलता हुआ घर को आता था जैसे कि कोई मफरूर कैदी भागता है जेल से. फ्राइडे नाइट वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक. ये फ्राइडे नाइट होती थी जो आगे, वो बड़ी खुशगवार रात होती थी पूरे हफ्ते की. बिकॉज ही कुड इंजॉय 2 full holidays बिफोर गोइंग बैक टू स्कूल. स्कूल जाने से पहले चूँकि उसे पता था कि अब मैं 2 मुकम्मल छुट्टियाँ जो है वो उनको इंजॉय कर सकूँगा, रिलैक्स कर सकूँगा. स्कूल का बर्डन कोई नहीं है, अगरचे होमवर्क जो है वो बारी भरकम अंदाज में अभी भी साथ होता था. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट डिड ही फील ऑन द संडे नाइट? विच वाज द मोस्ट फ्राइटनिंग नाइट ऑफ द वीक फॉर हिम? पहले सबसे खुशगवार रात का जिक्र आया, अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो संडे नाइट है ये सबसे ज़्यादा खौफनाक उसे क्यों लगती थी हफ्ते की? आंसर इसका, संडे नाइट वाज द मोस्ट फ्राइटनिंग नाइट ऑफ द वीक बिकॉज इट वाज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ डिसमेल एक्सपीरियंस ऑफ मंडे मॉर्निंग. तो भाई एक तालब इल्म को ये सुबह सवेरे फिर मंडे को चूँकि स्कूल जाना है तो उसे फिर वही जो है वो दुखी कर देने वाला तजर्बा उसमें से गुजरना है. तो ये इसलिए जो संडे नाइट थी उसके लिए खौफ से डरावनी किस्म की रात होती थी, खौफ से भरपूर जिसे कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट वर द अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स? वो गैर मुतवक्के छुट्टियाँ किस किस्म की होती थी जनाब? ऑन व्हाट ओकेजन्स डिड ही गेट अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़? किन किन मौके पर उसे ये गैर मुतवक्के छुट्टियाँ जो थीं जिन्हें वो रिस्पाइट्स कहता है वो उसे मैसर आती थी. Sometimes the writer enjoyed unexpected holidays like a half day to watch a football match or a sudden dismissal of school an hour or two before the usual time because of some crisis or celebration. Sometimes they got a skating holiday due to hard frost. Exact बिल्कुल ठीक जवाब है और मुख्तसर जवाब है, इसको इसी तरह से होना चाहिए. बाज़ औक़ात मुसन्निफ़ को जो है वो गैर मुतवक्के छुट्टियाँ जो थी इंजॉय करने का मौका मिलता था, जैसे कि आधे दिन की छुट्टी किसी फुटबॉल मैच को देखने की. अच्छा बेटे, ये जो यूरोप में ना ये फुटबॉल इज़ ए वेरी वेरी फेवरेट गेम ऑफ ईच एंड एवरी बॉडी. दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में फ़ुटबॉल जो है वो ज़्यादा जो है वो लोग इसको एंजॉय करते हैं, देखते भी हैं और खेलते भी हैं. हमारी तरह नहीं है कि सारी कौम जो है वो क्रिकेट के पीछे लगी हुई है. तो एक्टिव गेम, फिज़िकल गेम फुटबॉल, शॉर्ट 90 मिनट में फ़ैसला, 2-4-10 मिनट एक्स्ट्रा और भरपूर बच्चों को जिस्मानी सरगर्मी, फिज़िकल एक्सरसाइज. बहरहाल चलें, मैच और ए सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल, या यकदम स्कूल क्लोज़ हो जाता था. एन आवर और 2 बिफोर, 1-आध घंटा 2 घंटे पहले यूजुअल टाइम से, बिकॉज ऑफ सम क्राइसिस और सेलिब्रेशन, किसी हंगामी हालत या किसी तकरीब की बुनियाद पर. समटाइम्स दे गॉट अ स्केटिंग हॉलीडे, कभी कभी उन्हें बर्फ़ पर फिसलने के लिए भी स्कूल वाले इजाज़त दे देते कि जाओ भाई बर्फ़बारी हुई हुई है. तो ये ठंडे इलाके में रहायश पजीर है ये डेविडेशी साहब. तो यहाँ तो आपको पता है बर्फ़बारी 80 की दहाई में एक दफ़ा बेटे ओले पड़े थे गोजरा शहर में, 80 की दहाई में. तो आपके बुज़ुर्गों को में से किसी को शायद याद हो, तो चूँकि मैं भी एक बुज़ुर्गों में से एक अब निशानी हूँ, तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया है. वो ओले जो थे ना ऐसे ही थे जैसे बर्फ़बारी हो रही है.
3 दिन तक जो है वो इंतहाई यक ठंडक रही, और शहर में भी जो थे वो ओले बाकायदा बर्फ़ के गाले बनकर सड़कों पर, छतों पर जम गए थे। तो यानी हमने जो है ना, यहाँ वैसे तो भाई पहाड़ों वगैरह में जाकर बच्चे हमारे वो थोड़ी बहुत बर्फ़बारी देख दुख लेते हैं, जिस स्कूल के ट्रिप के साथ, कॉलेज के ट्रिप के साथ या फैमिली के साथ, लेकिन ज़िंदगी में 1-2 बार। तो लेकिन ये लोग जो हैं, जो मुस्तकिल वहाँ इन इलाकों में हैं, तो कुदरत की इस नेमत से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बहसीत तालिब इल्म जो है ना, इसने बेटे इनको छुट्टी वगैरह ये यकदम से मिलती थी, हॉली ब्रेक इसे कहते थे, तो ये उसको इंजॉय करते थे। और ये बेटे हमारी मुख्तसर से सवालात हैं, अगरचे भाई ये मश्क काफ़ी बड़ी मश्क बना दी गई है, लेकिन जवाबात जो हैं वो छोटे छोटे से हैं। आप इनको बेटे लिखें अपनी कलम से। Thank you everybody for participating in this session of ours. This was a technical session based on the questions and their answers. बेटे ये हमारे इस सबक के सवालों के जवाबात हैं जो मुकम्मल हुए। आपसे गुजारिश है फिर मेरी कि प्लीज़ बेटे, जब तक रेगुलर क्लासेस शुरू नहीं होती हैं तो अपने तौर पर आप इन स्लाइड्स को रोक रोक कर ये जवाबात जो हैं अपने कलम से प्लीज़ लिखें, और ताकि आपके जो है वो ये याददाश्त का हिस्सा बने, लार्जर आपको इनका फ़ायदा पहुँचे। एनुअल इम्तहान तक जाते जाते बार बार लिख कर देखना चाहिए। वोकेबलरी आपकी डेवलप होगी, राइटिंग पावर डेवलप होगी, लिखाई में बेहतरी आएगी, एतमाद साजी होगी। और बेटे ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको अपनी हैंड राइटिंग में जो है जवाबात को तहरीर करें। इंशाल्लाह दरमियान में हम अब ग्रामर को भी टचेस देंगे अगले वीक में इंशाल्लाह, और आफ्टर ईद हम ऐसे राइटिंग, स्पेशली ऐसे राइटिंग, ट्रांसलेशन और इडियम्स को शुरुआत करेंगे। और अब वक्फे से अब हम टेक्सचुअल रीडिंग करेंगे, क्योंकि भाई अब देखें लगातार हमने 3-4 लेसन जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। हमें एक सेंस क्रिएट हो गई है कि हाउ टू रीड अ टेक्स्ट। धीरे धीरे देखें मैंने उर्दू में आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर कर के साथ साथ बताया है, हालांकि ज़रूरत नहीं है उर्दू में इसकी एक्सप्लेनेशन की। वी शुड रीड द इंग्लिश टेक्स्ट थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, बट टू make you familiarize with the contents of the lesson, the message of the writer, I went through with you through Urdu medium। तो कोशिश की उर्दू और पंजाबी में आपको बेटे बात जो है वो समझाई जा सके, ताकि आप इसके मफाहीम जो हैं इन असबाक के उनको पा लें और ख़ुद जवाबात बनाने के काबिल हो जाएं। देखिए ये 40 नंबर का सवाल हम बेटे तकरीबन 55 नंबर का जो है हम शुरू किया हुआ है हमने। ये कोई यानी बेकार एक्सपीरियंस नहीं है आपका। यू आर गोइंग थ्रू दीज लेसन्स विद अ वेरी गुड फोकस ऑफ योर्स ऑन ऑलमोस्ट 55 मार्क्स। तो वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ना बेटे 20 नंबर का आपका MCQ जिसे आप कहते हैं, उसमें सिर्फ 5 से 7 नंबर की आपकी वो होगी, ग्रामर के सवाल होंगे, वो करेक्शन और प्रेपोजिशन में से। बाकी ये बुक बेस्ड सिनोनिम्स आपको पता है आते हैं आधे नंबरों के। तो ऑलमोस्ट 50 मार्क्स जो हैं वो आपके यानी इस वक्त राइट ऑन द मनी बेटे 50 नंबर का आपको पेपर अपना तैयार कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट एट ऑल यूजलेस, क्योंकि कई बच्चे जो है ना इस टेक्स्ट रीडिंग से बड़े वो होते हैं अनाए, तो इसमें दिलचस्पी पैदा करें। शाबाश, ये मैंने जानबूझकर थोड़ा सा वक्त आपका लिया है आपको समझाने के लिए कि बेटे इट इज़ not at all a useless activity. It is very very useful for the people who wish to reach the target of achieving at least 90 plus marks in this subject, and they are now possible 96, 94, 92 ये अब नॉर्मल मार्क्स कहलाते हैं बेटे। 90 प्लस जो हैं अब अंग्रेज़ी के पर्चे में बहुत आसानी से बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी मेहनत से, तवज्जे से बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासर हो बेटे। आपने सब्र और सुकून से मेरी बातें सुनी। अल्लाह आपको हदायत दे, मेहनत करने की आदत डाले।
اور آپ کو کامیابی نصیب کرے. تھینک یو ویری مچ اگین. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.